Good afternoon, students. This is Dr. Pradeep Yadav, Assistant Professor in Computer Science IT Department. So in today's lecture, I'm going to start a new topic, that is the probability distribution. And this probability distribution is the part of descriptive statistic, unit number 1. So before going to start, we will look the content. So these are the different contents, and in this presentation, I will discuss the variable, random variable, discrete variables, continuous variable, probability distribution, probability distribution types. Okay, and then we will discuss the exercise and in the last references. So know that we have already discussed the descriptive statistic in a detailed manner in our previous videos. As we have seen, the in the descriptive statistic, we were using the measure of center tendency, and we were using the measure of variability. And we have discussed that in the measure of center tendency, we have discussed mean, median, mode. Similarly, in the measure of variability, we have seen the different measures. For an example, we have seen range, and we have discussed the IQR, interquartile range, and we have discussed the variance. Okay, then and we have discussed the standard deviation. So today we will recall some of those topics that I've already discussed with you. So in the standard deviation, I already told you that if we are getting the low standard deviation, that that means that your values are close to the mean. Okay, and if you are getting the higher standard deviation, then your values are far away from the mean. Okay, these are the so by taking the different mean, and by calculating standard deviation, we can predict whether the dispersion is occurring or not. Okay, so now in today's topic, that is the probability distribution. Today we will discuss that how these variables, random variables, discrete variables, so these are the terms, these are the important terms. Okay, so in the probability distribution, we will discuss that how these values are very important. So as we so today, first of all, we will see the definition for the variable. So what is a variable? As I already told you in the previous presentation, that variable is an entity, and by which we can find the values. Okay, so here I will take variable is a symbol. Okay, so that can take on any specific set of values. Okay, so this variable definition, as we know, and in the C, C++, and programming, high level programming, we have already discussed the definition for the variable. So हम बोलते हैं ना कि वेरिएबल क्या है, एक रिजर्व्ड जो स्पेस है, जो हम मेमोरी में किसी जगह को रिजर्व कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज द वेरिएबल. ओके, तो यहाँ अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है वेरिएबल इज़ अ सिंबल. ओके, तो हम अभी ए बी एक्स एंड वाई, ये आपका क्या है, ये दीज आर दी डिफरेंट वेरिएबल्स. ओके, जो कि वैल्यू पे स्टोर करते हैं. ठीक, नाउ व्हाट इज़ अ रैंडम वेरिएबल. अब देखिए, यहाँ हम चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे. पहले हमने पढ़ा वेरिएबल. नाउ व्हाट इज़ अ रैंडम वेरिएबल? व्हेन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल when the value of a variable is the outcome of a statistical experiment. This line is a very important line. यहाँ statistical experiment इसको underline करना चाहिए, because sorry कहाँ पहुँच गए हम. हाँ, so a statistical experiment, that variable is known as the random variable. Okay, which one? This is statistical experiment. This is the important line. When the value of a variable is the outcome of a statistical experiment, that variable is known as a random variable. तो आपने कई दफ़ा सुना होगा कि probability distribution में random variable का जिक्र होता है. ओके, सो random variable होता क्या है? जब हम statistical कोई experiment perform करते हैं, statistical experiment,
तो उस एक्सपेरिमेंट में जब कोई आउटकम हमें मिले, ठीक है, किस फॉर्म में, आपका वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल की फॉर्म में आपका आउटकम जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। ओके, नाउ एग्जांपल्स हम इसको समझेंगे कि ये सॉरी रैंडम वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि मैंने एक कैपिटल एक्स लिया है, एक्स रिप्रेजेंट्स दी रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, दिस इज दी रैंडम वेरिएबल। अब मैं लेना चाह रहा हूँ पी ऑफ एक्स। यहाँ पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, पी है हमारी प्रोबेबिलिटी एंड एक्स जो हमारा स्मॉल एक्स है ये हमारी वैल्यू है। ओके, सो पी ऑफ एक्स, so this p of x represents the probability of x। ओके, तो ये जो हमारा p of x है ये क्या बता रहा है कि x की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है चांसेस ऑफ ऑकरेंस। ओके, कि हमारे अकर होने के क्या चांसेस हैं, वो आपका रहता है या तो ट्रू या फॉल्स। ओके, तो यहाँ P के अंदर हमने देखा कि P कैपिटल X इक्वल टू एक्स रिफर्स द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल X इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, अभी देखिए यहाँ पर, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिफर्स द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल कौन सा, X इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, रैंडम वेरिएबल जो हमारे हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के। तो अगर हमारी जो वैल्यू है, अभी देखिए एक्स क्या है, स्मॉल जो एक्स क्या है वो आपकी वैल्यू है, और कैपिटल एक्स क्या है, आपका रैंडम वेरिएबल है। ओके, अभी जो आपका स्मॉल एक्स था अब वो हो गया वन, वो क्या हो गया वन, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वन है। तो रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है अभी कितनी है, वो इज इक्वल टू वन। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि p ऑफ x इक्वल टू वन रिफर्स दी प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, x की अकर होने की, वो रहेगी वन। ओके, सो रैंडम वेरिएबल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आप यहाँ से ज़रा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। नाउ सपोज यू फ्लिप अ कॉइन टू टाइम्स, इट शोज फोर पॉसिबल आउटकम्स। हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कॉइन का एग्जांपल है। अगर मैं उस कॉइन को टू टाइम्स फ्लिप करता हूँ, ओके, तो अगर मैं एक बार फ्लिप करूँगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, अगर मैं टू टाइम्स करूँगा तो उस केस में क्या होगा, या तो एक बार हेड होगा, दूसरी बार भी हेड हो सकता है। ओके, या एक बार हेड होगा, दूसरी बार टेल हो सकता है, या फिर पहली बार हेड होगा या दूसरी बार टेल हो सकता है, मतलब हो सकता है। सिमिलरली तो आपके पास टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, इसमें टोटल आपके पास आएंगे चार आउटकम्स। ओके, सो नाउ लेट वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। अभी मैंने जो वेरिएबल है एक्स, ओके, अभी देखिए अभी ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल है, जो हमने पहले डेफिनेशन इसकी आपको बताई थी, दिस इज अ सिंपल वेरिएबल, अभी ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। ओके, सो नाउ लेट वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, आपके क्या पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ हेड्स के अकर होने की, आप देख सकते हैं फोर मेरे पास आउटकम्स हैं। या तो हेड मेरा अ, एक भी बार ना आए, जैसे कि लास्ट के केस में देख सकते हो कि टेल टेल आया है, इसमें हेड आया नहीं आया। ओके, एंड पॉसिबिलिटी है कि एक बार हेड आए, तो बीच के जो दो दो केसेस हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो हेड है, यहाँ इस जगह पे वो आपका टू टाइम्स आया। ओके, तो मतलब ये है कि वो हर एक केस में एक बार आ रहा है। ओके, तो ये हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, वन। ओके, एंड एक केस है जो फर्स्ट नंबर का केस है, वहाँ पे हमारे हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, दो बार अकर हो रहा है। ओके, समझे मेरी बात को। तो यहाँ अभी हम क्या देख रहे हैं कि नाउ लेट वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ एक्स में जो पॉसिबिलिटी है उसमें आपके पास में क्या आया, या तो ज़ीरो टाइम्स, ज़ीरो टाइम में मतलब ये जो वाला केस है, ये वाला लास्ट वाला टी टी, यहाँ पे हेड एक भी बार नहीं आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, ज़ीरो। ओके,
अगर एक बार आया तो वो कौन कौन सा है, एच टी एंड टी एच, इन केसेस में एक एक बार हेड आया है। ओके, एंड लास्ट का जो फर्स्ट वाला केस है एच एच, उसमें आपका कितनी बार आया है, टू टाइम्स आया है। Okay, now here x equal to random variable because its value is determined by the outcome of a statistical experiment. Now अब हमारा x क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा ये random variable। इससे पहले random variable नहीं था। जब statistical experiment हुआ, जब हमारा मैंने coin को flip किया एंड उसके बाद जो outcomes आए, उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आउटकम आए हैं उनके बेसिस पे मैं रैंडम वेरिएबल को फाइंड आउट कर रहा हूँ, दैट इज द रैंडम वेरिएबल। ओके, तो इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान रखिएगा कि रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो रैंडम वेरिएबल हमारा तभी कैलकुलेट हो सकता है जब तक कि हम स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करें। ओके, ना मूव करते हैं आगे। एग्जाम्पल है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ओके, a coin is tossed 3 times. What is the probability that it lands exactly on heads? It lands on heads exactly 1 time. Okay, एक कॉइन है, हमने उसको 3 टाइम्स टॉस किया। अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जैक्टली एक बार हेड लैंड करे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, देन मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे। ओके, क्योंकि आपका कॉइन है, या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहाँ मैं क्या लूँगा, 2 आउटकम्स आ सकते हैं। ओके, इसलिए मैं क्या लूँगा, 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टू द पावर 3। ओके, क्योंकि मुझे 3 टाइम्स मैंने कॉइन को क्या किया, टॉस किया है। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे अपने, 2 द पावर 3। और 2 द पावर 3 में आप जब कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट टोटल आउट 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 सॉरी 8 आउटकम्स, देन यू विल गेट टोटल 8 आउटकम्स। और ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके ही बता दिया कि वो 8 आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। हेड हेड हो सकता है, 3 टाइम्स हेड हो सकता है, 2 टाइम्स हेड एंड 1 टाइम टेल हो सकता है, 2 टाइम्स हेड एंड 1 टाइम टेल्स, इस कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशंस आए आपके। ओके, तो यहाँ अब देखिए ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आपके 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 2 टाइम्स अगर हेड आ भी रहा है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन तो अलग अलग हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सेकेंड जो लाइन है हमारी, आप यहाँ देखिए, वेट अ मिनट, इन दिस लाइन, इन दिस लाइन, यहाँ पे 2 हेड फर्स्ट टाइम आए, देन थर्ड में टेल आया। ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड केस में, यहाँ फर्स्ट हेड आया, देन थर्ड हेड आया, सेकंड नंबर पे आपका क्या है, टेल आया। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन अलग है। ओके, तो इस तरीके से टेल टेल में भी कॉम्बिनेशन अलग है कि लास्ट में 2 टेल आए, हो सकता है कि पहले नंबर पे आए और लास्ट में आए। तो ये इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशंस तो अलग अलग आ रहे हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स ऑन हेड्स एग्जैक्टली 1 टाइम, वो एक ही बार एग्जैक्टली 1 टाइम क्या हेड पे लैंड करे। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए, 8। अब क्या करूंगा मैं यूज़, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा 3C of 1। 3C1 क्या होता है, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। ओके, तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला जब हमने प्लेस किया, एंड 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका रिजल्ट आया 3। कितना आया कॉम्बिनेशन आपके, 3 आए। अब प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल आपका 3 आया उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो आप एज यू ऑल नो दैट दिस प्रोबेबिलिटी इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है। ओके, देन व्हेन आई विल डिवाइड दिस 3 by 8, what I will get 0.375. So this is the probability that you will get. Okay, so in this way we can solve the numerical. Now this is the important definition.
The probability distribution is a table or an equation that links each outcome of a statistical experiment with its probability occurrence. Okay, तो probability distribution की definition क्या है? Is a table or an equation that links each outcome of a statistical with its probability occurrence. So यहाँ पे जो probability distribution की बात कर रहे हैं, देखिए probability distribution में दो चीज़ें आती हैं, एक probability है, दूसरा है distribution. तो अगर हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसका जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, या तो मैं किसी टेबल में करूँगा या किसी इक्वेशंस के थ्रू मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा, तो वो मुझे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसके थ्रू, या तो टेबल्स के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू, जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक तरीके से दो कॉलम लिए हैं. पहला कॉलम है नंबर ऑफ हेड्स, दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी. तो नंबर ऑफ हेड्स में हमने लिया है कि अगर हेड 0 टाइम्स आता है देन क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, अगर हेड 1 टाइम आता है तब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, और अगर हेड 2 टाइम्स आता है तब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी. ओके, तो आप देख सकते हैं कि 0 टाइम्स अगर हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी है 0.25. सिमिलरली 1 टाइम अगर हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.50. एंड अगर 2 टाइम्स आपका हेड आ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.25. Okay, so this is the probability distribution. Now, discrete variables. Discrete variables. Suppose we flip a coin and count the number of heads. Actually, discrete variables and continuous variables, ये दो टर्म्स और हैं जो कि हमारे probability distribution कई बार यूज़ की जाती हैं. बट अभी हमने क्या सीखा, क्या समझा कि वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है. नाउ थर्ड है हमारे पास कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं. ओके, सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स, सपोज वी फ्लिप अ कॉइन एंड वी काउंट द नंबर ऑफ हेड्स. ओके, हमने कॉइन को फ्लिप किया एंड नंबर ऑफ हेड्स को हम काउंट कर रहे हैं. कितनी बार भी कर सकते हैं, अभी मैंने इसमें कोई आपको वो एक फिक्स नहीं किया है कि 2 टाइम्स कर रहा हूँ, 3 टाइम्स फ्लिप कर रहा हूँ. Then the number of heads could be any integers value between 0 and plus infinity. तो देखिए, जब आपका जो नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है, 1 टाइम्स आ सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है. अगर नंबर ऑफ टाइम्स हम ज़्यादा फ्लिप कर रहे हैं तो हमारे पास 3 टाइम्स भी आ सकता है, 4 टाइम्स भी आ सकता है. तो यहाँ जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो आपका इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है. ओके, 1 2 3 4 इस टाइप से आ रहा है. ओके, तो इस केस में इस टाइप से अगर आपका कोई भी वैल्यू आती है, दैट इज नोन एज द डिस्क्रीट वेरिएबल. वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाएगा. अगर however it if it could not be any number like 2.5, अगर इस केस में अगर आपका कुछ आता है वैल्यू, इज इट अ डिस्क्रीट वेरिएबल? नहीं ना, क्योंकि ये कोई इंटीजर तो है नहीं. ओके, ये तो फ्लोट में है, तो ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कहलाएगा. ओके, सो डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके इंटीजर्स के फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, जैसे 1 2 3 4 5 इन दिस वे, दैट इज नोन एज द डिस्क्रीट वेरिएबल्स. ओके, नाउ व्हाट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल? Continuous variable, suppose the police department maintains all the police officers must weigh between suppose the police department mandates that all police officers must weigh between 150 and 250 pounds. तो यहाँ उन्होंने मैंडेट कर दिया है कि भाई आपका जो वेट है वो इतने के बीच में ही होना चाहिए. द वेट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वुड बी एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं 133.3 है, 160.1 है, एट्सेट्रा. तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं एक तरीके से, यहाँ कंटिन्यूस वैल्यूज़ है. आपका जो वेट है वो आप कुछ भी हो सकता है. आपका वेट आपका 6, अगर फॉर एन एग्जांपल एक नॉर्मल ह्यूमन बीन है तो उसका 60 kg 70 kg, तो उसमें भी 65 पॉइंट समथिंग होगा ना वेट. एग्जैक्टली ऐसा तो होगा नहीं. तो ये जो हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जो आपका कंटिन्यूस फॉर्म में अगर आप वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट इज़ नोन एज द कंटिन्यूस वेरिएबल. ओके, सो ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है. ओके,
So continuous variable में you will get the values in the floating point, and in the discrete variable you will get the values in the form of integers. Okay, so integers and these floating point values. Now here I've write down a note, because this is the important note that you must know, that if a random variable is a discrete variable, देखिए दोबारा सुनिए, if a random variable is a discrete variable, then its probability distribution is called a discrete probability distribution. कई बार आपसे पूछा जाता है कि discrete probability distribution क्या होता है, तब आप ये डेफिनेशन बताएंगे कि इफ़ अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अगर कोई रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, और वो रैंडम वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका जब कोई भी वेरिएबल पे जब स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रैंडम वेरिएबल। ओके, और अगर वो रैंडम वेरिएबल किसी इंटीजर्स वैल्यूज के फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, और जब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली, if a random variable is continuous variable and its probability distribution is called a continuous probability distribution। तो ये दो तरीके के probability distribution होते हैं, पहला होता है discrete probability distribution एंड सेकंड है आपका continuous probability distribution। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया हुआ है। नाउ what is the probability distribution? Probability is the chances that are associated with the occurrences of an outcome. The probability of an event ranges from 0 to 1, where when the probability of occurrence is found to be 0, then an individual is sure that the event won't happen, unlike when the probability is 1, which means that the event must occur. So ये सिंपल सी बात ये है कि यहाँ जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 एंड 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ओके, 0 का मतलब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं अकर होने की। ओके, 1 का मतलब कि बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है कि अकर होगा, एंड उसके बीच की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपकी फिक्स नहीं रहती। ओके, सो बट आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 रेंज उसकी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ the probability distribution is used to describe the variables of interest or describe the data. This is the another definition. Or probability distribution is a table or an equation that links each outcome of a statistical experiment with its probability occurrence. So मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि probability distribution क्या है। जब आपका जो distribution हम कर रहे हैं after the statistical experiment के बाद जो हमारे outcomes आ रहे हैं, तो हम उनको जो आपकी probability है वो आपको tables के फॉर्म में बता रहे हैं या ग्राफ्स के थ्रू बता रहे हैं, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली आपका होना चाहिए, या तो टेबल के थ्रू या आपका इक्वेशंस के थ्रू। ओके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता है, तो दैट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह की आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने आपको अभी आपको बताया कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, it is a statistical distribution that shows the probability of outcomes with finite values। ओके, तो हम वहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे थे 1 2 3 4 5। सो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ आपकी तीन तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं डिस्क्रीट के अंदर। ओके, ये और भी होती हैं लेकिन मैंने मेजरली तीन लिए हैं यहाँ। पहला है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दूसरा है आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ अ रैंडम वेरिएबल इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर दो तरह की होती है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसका दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकेंड है आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, so these are the two probability distributions जो कि continuous distribution का part है। ओके, सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हम इनको आगे प्रेजेंट जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे कि ये
डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं, एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं. Now, this is the exercise that I've given to you, and you need to solve these questions. What is a probability distribution? One type of probability used practically every day is, out of this you have to tell that which is the probability that you use daily. So, and the third is the when a person flips a coin, what is the probability that it will comes up heads? Okay, so these are the questions that you need to solve. So that's all about the probability distribution. This is the part 1 of this probability distribution, and in the part 2 we will discuss the different kinds of probability distributions. We will discuss the discrete probability distribution, and in the discrete we will discuss the binomial probability distributions. Okay, so similarly we will discuss these different probability distribution one by one. सो आज के लिए इतना ही, एंड जो कमिंग वीडियोस रहेंगे वहाँ हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस को डिटेल में देखेंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूशंस का जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे इस स्टैटिस्टिक के अंदर, वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है. ओके, सो डेटा साइंस की जो हम बात करते हैं वो बेसिकली इन चीज़ों पर डिपेंड करता है. अगेन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा. इन डेटा साइंस these are the important things that we need to learn. Okay, so these are the basics that we need to learn. तो यहाँ अभी डिस्क्रिएट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.